May I come in, sir? Please come. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. That. Thank you, sir. Satyam, are you comfortable? Yes, sir. I'm good. You're okay in English? Yes, sir. I'm okay in English. Okay. You have done your graduation from Delhi, no? Yes, sir. What? Sir, Ram Lalanan College. Where is it? In DU? Sir, it's in... Which part of a DU? college, sir. It's in South Campus, sir. Beside South Campus. Oh, South Campus. Okay. And you have done further studies from Aryabhat College. Then you have taken political science. That means political science has been your favorite subject, right? Yes, sir. From starting only from my graduation to post-graduation. And as far as DU concerned, Yes, sir. Pardon? Delhi University is concerned, Yes, sir. do you think there should be political bodies in the university? Yes, sir. According to my point of view, sir, since when we join the colleges, normally every student comes to an age of 17 or 18. So to have a political exposure is also very necessary because the youth of the country only shapes the policies, futures, the upcoming generation. So when they will actively participate, so kind of political culture will develop right from the young age. Whenever they like in their budding stages only. So it will result into good accountability on governance structures and everything. So But Mr. Satyam, yes, sir. we all go to college or a DU, for example, for studies. Yes, sir. Please wait. One. Number two, we also got international students who got nothing to do with the politics. Number three, most of the time during election time is consumed in campaigning and posturing in DU. I'm from DU, I know the reason. Tell me, it should be eradicated or retained? Sir, I don't think, sir, it should be eradicated, sir. Because whatever it is, sir, political campaigns or elections and all, sir, whoever want to participate, so they have to do it willingly. So the classes goes on, and when it comes to the international students, sir, so being a part of being a part of that institute or being a part of that college, they also get the right to vote in representing their Mr. Satyam, leaders. with due apology, So in the Delhi University, most of the political bodies have maximum of members who are from Bihar. Perhaps 80-90%. 10% are from other states. Okay. What is your take on this? You mean to say, my question is, why is it so? One. Number two, why aren't the students from other states active into the politics there, whatever? Please give your explanation. So, according to my point of view, sir, I think not only in DU, sir, in most of the universities or in various colleges of any stream, sir, whether it's technical, IITs, IIMs, a lot of people from Bihar go on and join that. That's because of lack of opportunity in our state, sir. So they have to migrate for well qualified education, for better facilities of education, and two, sir, that we know that students here, like we have damn good potentials, and we know it well that along with that, sir, like the students here learn politics from quite a initial stages only, whether it's come to family politics or like in societal politics. So they are exposed well regarding politics, sir. So Okay, that's why, sir, they go on and join
this institute, sir. Ms. Satyam, you are also teaching general knowledge, no? Sir. That means am I facing the encyclopedia of general knowledge? Sir, I will try my best, sir, to cater all your No, questions. my question was, am I sitting in front of the encyclopedia of GK? No, sir, I will not exaggerate and tell myself to be an encyclopedia, sir. And you also equipped with law. You're coaching with common law admission test also. Sir. Candidates, I believe so. That's as per your biodata. Yes, sir. Have you done law? No, sir, I haven't done that. Then how did you coaching CLAP candidates? Sir, pardon, sir. Sorry, sir. You want water? No, sir, thank you, sir. So there are a lot of sections in the CLAT paper, sir. So it comprises of legal studies, GK, English comprehension, and other subjects. So I only take the general knowledge part. So in the CLAT examination, sir, the questions comes in the format of comprehension. Along with that, the questions can be from that passages or around that passages. So I try to and majority of the questions come from the political science, history, and current affairs. So I teach my students that only. Okay, that portion only you teach. Yes, sir, that portion. Okay. Now let us go outside the country. So sure, sir. Mujibur Rahman, who was he? So Mujibur Rahman was the founding father of Bangladesh. So. Okay, and the Madam Sheikh Hasina? Yes, sir. So, she is the daughter and was Daughter of whom? the Prime Minister of Bangladesh before. She is daughter of whom? Mujibur Rahman? Yes, sir. She is the daughter of Okay, Sheikh and Mujibur Rahman. what is her condition now? So she is in exile, and currently the Indian government they are providing the security to The caretaker government So- of Bangladesh So is taken care by whom? Sir Muhammad Yunus, sir, who is a Nobel laureate, sir. Is he elected member? No, sir. There is a provision in the Constitution of Bangladesh, sir, that whenever there will be a vacancy at the political structure, then an interim government will be formed by comprising the consent of the major political parties that they are there in the Bangladesh. So. Is he a recipient of any international award? Yes, sir. He is a recipient of Nobel Award, sir. In which field? So he is a Nobel laureate in economics field, sir. What is that when you're talking about? Which? Sir, economics, sir. Economics. Economics, sir. Why I asked you this question? Knowing that he got in economics, is his economics background helping the economy of Bangladesh? No, sir, it is not helping. Though, sir, what his subject was that he studied and presented, he got his Nobel for the microfinancing, sir. Because microfinancing was by providing especially to women, sir. So that's why he proposed the ideas and it was implemented in Bangladesh, and because of that, so he got a Nobel Prize, sir. But sir, when it comes to running a country, sir, various factors are there. Various economic factors are responsible to run the economy of a country, and that includes the manufacturing sector, the agricultural sector, the tertiary sector, that are the services sector, sir. And sir, before the revolution in Bangladesh, sir, there has been good development in the textile sectors in Bangladesh. And because of that, Bangladesh economy was growing at a good speed also. But when it comes to like internal securities issues. Can I take a minute? Yes, sir, sure, sir. Mr. Satyam, which is the pillar of economics? Pillar of economics. There are 3 pillars of economics in Bangladesh. Can you name them? The bread and butter of Bangladesh. Sir, I don't know exactly, sir, but I can make a guess, sir. Oh, you are a GK teacher. Sir, I haven't. Okay, please. Sir. So, I can. The major one is, sir, I am guessing, and it might be right, sir, that one comes from the.
I think, sir, what I am guessing, it might be correct, it might be not. No, sir. welcome. We take a time. No problem. So, I think one is manufacturing sector, especially the textile sector, I guess, sir. Correct. And the second should be agriculture, because a lot of plains are there in the Bangladesh. So, and irrigation and agricultural activities can be the major second pillar of Bangladesh. India, Jute, especially the jute industry. jute. Yes, sir. And so third one is The third one is you are missing out the main. Of course you got. Okay, tell me. They come in thermocol boxes. What are they? fisheries, sir. Yes. Okay, sir. So yes, sir. Because of the good coastline area, so fisheries can also be one of the major. Oh, you're talking about coastline area. What is the significance of coastline area in the hitting as far as geography is concerned? Though it's not a subject, but it is a general knowledge. So, What is the significance of coastline in context to the economy of India? so in the context of economy of India, so India is blessed with a very good area of coastline, that is around more than 7,500 kilometers of coastal length. And so because of that, so a lot of opportunities are there in the field of name four. first I would like to tell you that the development of the fisheries industry only. And in recent times, India, the target of India that which has set is going to be more than $100 billion in the coming years, in the next 5 years, sir, to export the seafood. The second is, sir, the energy sector, that is the tidal energy. And the tidal energy, sir, because it can be a very good source of renewables energy, sir. And the third one is, sir, the development of the seaweed. That the seaweed is a very nutritious plant that can be utilized for catering the need of the nutrition of the country, sir. Wonderful. Yes, sir. What about shipyards? So, yes, sir, I was coming to that only, sir. The manufacturing of No, the shipyards and Wonderful. yes, sir. Before you come to shipyard, let's come to Bihar now. Sir. Is there any shipyards in the pipeline in the state of Bihar? Yes, sir. Recently, the Honorable Government of Bihar, they have proposed a cruise terminal in Patna only, sir. Then Which will, how will it improve the economy of the state of Bihar? of course, logistics and transport is one of the major sectors in the supply chain management today. Will it improve the per capita income? Yes, sir. If we look at Partially. the Partially or fully? if you look at the larger picture, sir, then transport, Bihar being one of the largest consumer base, there is an opportunity. Bihar is not a consumer base for shipping. No, not for shipping, sir. For the other products that can be invested in Bihar, sir. Other than that, sir, what I have read about that cruise terminal, sir, is that it can be also used for the repair and management purposes also. So the national waterways, which works as good transport, and which has a very good potential to increase the cost efficiency of the transport sector. So I think Bihar can be a good. Thank you, Mr. Next. पॉलिटिकल साइंस Sir. इग्नू से Sir. ओके आपके सर्विस प्रेफरेंसेस क्या है So first is Bihar Administrative Services. The second is Bihar Police Services. And the बिहार third, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्यों आना चाहते हैं सर, क्योंकि सर मैं बिहार में एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी कि लोगों के साथ मैं डायरेक्टली जुड़ सकूं और उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकूं, सर, डायरेक्टली. ओके क्या किन पदों पे आफ्टर ट्रेनिंग आपकी नियुक्ति होगी यदि आप बिहार प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हो जाते हैं सर, जो सबसे पहले जो पद होते हैं वो SDCs के पद होते हैं, जो कि एक जिला मुख्यालय के अंदर बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ एंड सैनिटेशन,
इस्टेब्लिशमेंट और अन्य विभाग होते हैं, ओके जिसमें कि उसके हाँ। बाद सर फिर मुझे एसडीओ या एसडीएम के लिए प्रमोट किया जाएगा, जो कि कुल 121 सब डिविजन्स हैं बिहार के अंदर। बिहार में 121 सब डिवीजन है। 101 सर। 101 बढ़िया है। अभी आप जीके के टीचर के रूप में कार्यरत हैं जी सर। क्लैट कोचिंग क्लासेस में। जी सर। जीके और जीएस में अंतर बता सकते हैं क्या होता है? सर जीके इज मोर अबाउट द फैक्चुअल नॉलेज सर, ओके and general studies comprises of the analytical and critical understanding of the द knowledge sir. सब्जेक्ट मैटर। Yes sir. ओके आप क्या पढ़ाते हैं जीके में? सर मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ सर। तो हम ये मान के चलें कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में आप मतलब फैक्चुअल नॉलेज के दृष्टिकोण से ब्रश अप होंगे हाँ सर, थोड़ा सा मैं बहुत हद तक। कर सकता हूँ। ओके ताल कटोरा का युद्ध कब हुआ था? ताल कटोरा तालकोटा, तालिकोटा, तालिकोटा, तालिकोटा। बन्नीहट्टी, तालिकोटा, राक्षस तांगड़ी। आई एम सॉरी सर, मुझे इसके बारे में और बक्सर की लड़ाई? सर बक्सर की लड़ाई सर अंग्रेजों और जो 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स थे उस समय पे इंडिया में, उनके कब बीच हुआ हुआ था? सर 1764 सर। और मोहम्मद बिन कासिम ने कब भारत को इन्वेड किया था? सर आई गेस सर, आई एम नॉट एग्जैक्टली, मतलब मुझे इसके बारे में एकदम करेक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई गेस 800 AD के अराउंड मतलब आया था वो। 711 और 12 जी सर। एडी। आजकल एक टर्मिनोलॉजी प्रयोग होने लगा। पहले जो हम लोग एडी प्रयोग करते थे, अब उसके जगह पे हम लोग सीई प्रयोग करने लगे हैं। जी सर। क्या है ये सीई? सर ये जो सी है सर, ये एक जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके जब से जीसस का बर्थ हुआ था, तो बिफोर क्राइस्ट एरा और अभी क्राइस्ट एरा, मतलब पोस्ट क्राइस्ट एरा, तो उसको क्राइस्ट एरा है द कॉमन एरा। कॉमन एरा। सर सॉरी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ओके चलिए, अभी इंटरनेशनल एरिना में क्या हो रहा है? सर कुछ इंटरनेशनल अरीना में सर एक तो यूएस और ईरान के बीच में काफी ज्यादा टेंशन्स चल रही हैं, जिससे क्या कि पूरा इसका मिडिल हिस्ट्री ईस्ट क्या है? डिस्टर्ब हुआ है। मतलब बैकग्राउंड क्या है इस टेंशन्स के? सर अगर देखा जाए तो सर जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है जो ईरान के द्वारा किया जा रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के यूएस काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उसके परेशानी का कारण है उसकी इजराइल से नज़दीकियाँ, क्योंकि ईरान जो है वो एक अपना रीजनल पावर बनना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और इजराइल उसे बनने नहीं देना चाहता है। तो 1970 के लास्ट में या 80s में ईरान का किसी देश के साथ युद्ध हुआ था, लगभग 10 साल तक चला था। कौन सा युद्ध था? सॉरी सर, मेरे से जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 क्या है? सर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है सर। एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? मैं Sorry, स्टार्ट कर देता हूँ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड सॉरी सर, I cannot. ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल। Personal. ओके, उसको बहुत एक्सपेंड किया गया। Sir, कुछ डिसीजंस आप बता सकते हैं कि किस डिसीजन में क्या चीज को इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 21 के अंदर? और हाल से मेरा मतलब है विद इन एक वीक कुछ और इनकॉर्पोरेटेड हुआ उसमें? सर अभी राइट टू मेनिस्ट्रुअल हेल्थ को अभी सुप्रीम कोर्ट, सर जितने भी इंक्लूजन हुए हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए हैं, और अभी जो सबसे लेटेस्ट जो एडिशन हुआ है वो राइट टू मेनिस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर के हुआ है, क्योंकि जो महिलाओं के जो पीरियड्स का जो वक्त होता है उस समय पे सैनिटरी पैड्स का उपलब्ध करवाना विद्यालयों में। बिफोर मेनका गांधी एंड आफ्टर मेनका गांधी जो केस में क्या डिफरेंस आ गया इस आर्टिकल में, या लाइफ के लिबर्टी वाला लाइफ और लिबर्टी का जो हमारा फंडामेंटल लाइफ?
सब मेनका गांधी केस एक बहुत बड़ा केस था जिसके अंदर दो डिफरेंट जो परसेप्शंस थे वो निकल के आए थे आर्टिकल 21 को लेकर के। उसके पहले जो था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का प्रोविजन था, और क्योंकि उसमें सिर्फ ये देखा जाता कि जो नियम जो बनाए गए हैं वो नियम संगत बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, परंतु बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का भी कॉन्सेप्ट आया था। क्या अंतर है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सर लॉ के इंटेंशंस को देखा जाता है। अच्छा। कि जो लॉ बनाया जा रहा है वो कहीं लोगों के राइट टू लाइफ को हनन तो नहीं कर रहा है या उसके राइट टू लिबर्टी को ये कंसेप्ट कहाँ से है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? सर अमेरिका का कंसेप्ट है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय सर। लॉ वो यूके का है सर, ब्रिटेन का। यूके का है या जापान का है? सर मैंने तो सर ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा है सर। ब्रिटेन में तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ प्रोसीजर कैसे एस्टेब्लिश हो सकता है? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में ओके। कौन सा पॉलिटिकल थिंकर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं? सर मुझे सर मैकियावेली सर। मैकियावेली सर क्या उनका सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत है? सर सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत उस समय का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसलिए बना क्योंकि जो रिलीजन था उसका आम लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुआ था, जिसके कारण कि जो पॉलिटिकल जो राजा हुआ करता था उसको किसी भी चीज़ के लिए चर्च से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस चीज़ को बताया गया कि एक स्ट्रॉन्ग किंग बनने के लिए डिवीजन होना पावर का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चर्च का जो एक स्फीयर है वो एक पर्सनल स्फीयर का है रिलीजन, और जो पॉलिटिकल स्फीयर है ये पब्लिक स्फीयर है। सेपरेशन ऑफ पावर अपने आप में एक पॉजिटिव कंसेप्ट है या नेगेटिव कंसेप्ट? सर सेपरेशन ऑफ पावर इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट सर। भारत में क्या है? भारत में सर देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी सर। इसको हम किस रूप में बोलेंगे? किस रूप में बोलेंगे? चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस। ओके। टेलीग्राफिक पठार हाँ टेलीग्राफी पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ेंगे। टेलीग्राफी नहीं सर। मानसून विच्छेद क्या होता है? सर इसका मैं विच्छेद का सर मैं इंग्लिश में जान सकता हूँ सर नाम? सेपरेशन या मानसून अलग करना, सेपरेट करना। मानसून आयोग के लिए सर जो मानसून जब इंडिया के अंदर आता है तो उसके अंदर एक ब्रेक लगता है, तो जिसके कारण जो रेनफॉल की जो इंटेंसिटी वो लगभग 14 से 15 दिनों के लिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स मैंगो शावर एक होता है। जी सर। क्या सर मैंगो शावर सर ये प्री मानसून मतलब मानसून आने से पहले बिकॉज ऑफ लोकल इवेंट्स कुछ कोस्टल एरियाज में बारिश होती है, खास करके कर्नाटका, क्योंकि सर केरला और कर्नाटका के अंदर जो भी मैंगोज होते हैं उनके राइपनिंग में हेल्प करता है सर। भारत स्वतंत्र हुआ तो एक एक्ट आया, उस एक्ट के तहत स्वतंत्रता दी गई। कौन सा एक्ट? सर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सर 19 कहाँ पारित हुआ था? सर 19 ये इंग्लैंड में पारित हुआ था। तो उस समय जब भारत का संविधान बना जी सर। तो विदेश नीति निर्धारित किए गए थे। जी सर। उसका किसी संविधान में, हमारे संविधान में अनुच्छेद में स्पष्ट वर्णन किया गया है। जी सर। किस अनुच्छेद में? सर आर्टिकल 50 में सर। 50? जी सर। क्या कहा है? सर आर्टिकल 50 में ये था कि फॉर इंटरनेशनल पीस इंडिया विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। 50 या 51 कंफर्म में बताइए। सॉरी सर। क्या कहा गया था उसमें? उसमें ये कहा गया था कि सर इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल पीस को और हम पंचशील का सिद्धांत कब आया था? सर पंचशील का सिद्धांत 1954 में माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा सिद्धांत किया गया था क्या? जी सर। सर पंचशील का कॉन्सेप्ट सर चाइना के हमारा जो चाइना के साथ जो बाउंड्री लगता है उसके कॉन्सेप्ट में आया था, उसके कॉन्टेक्स्ट में आया था। क्या कहा गया? एक तो सर नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी थी, पीस एंड हार्मनी और कल्चरल डेवलपमेंट की बात की गई थी, और पीस
मेनली सर जो भी हमारा चाइना के साथ जो संबंध थे उसको तिब्बत के कॉन्टेक्स्ट में ये लाया गया था। इसका पालन बाद में भी हुआ है, हम देशों के संदर्भ में पालन किया। जी सर, नॉन अलाइंड मूवमेंट के संदर्भ में ये किया गया था। अभी जो विश्व का हम स्थिति देख रहे हैं अभी बहुत ध्रुवीय बन चुकी है, जी सर। तो उसमें गुटनिरपेक्षता की कितनी प्रासंगिकता रह गई है? सर पहले जो गुट निरपेक्षता है वो पहले नॉन अलाइनमेंट था, क्योंकि सर भारत की जो विदेश नीति है सर वो नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ अग्रसर हो अभी चुका उसकी है। प्रासंगिकता है। जी सर, बिल्कुल सर। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट हुआ है सर, वो नैन उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, क्योंकि सर एक ग्लोबल लीडर के रूप में खास करके ग्लोबल साउथ के देशों के लेकर के इंडिया अपने आप मतलब उसका स्वरूप ग्लोबल साउथ के रूप में बदल गया है सर। है ना? यस सर। अच्छा, तो अभी भारत की विदेश नीति का क्या आधार है, मूलभूत आधार क्या है? अभी जो देख रहे हैं चारों तरफ जो छिड़ा हुआ है, अभी आधार क्या है? अभी सर न्यूट्रलिटी और मल्टी अलाइनमेंट का जहाँ पे भी सर भारत का जो इंटरेस्ट होगा, नेशनल इंटरेस्ट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है सर। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प महोदय के दबाव में भारत ने रूस से तेल आयात कम कर दिया है, ईरान से लगभग तेल बंद भी कर दिया है। जी सर। ऐसे दबाव में काम किया जा रहा है क्या? सर अगर मेरा ओपिनियन इस चीज़ पे है कि कहीं ना कहीं सर अमेरिका हमारा बहुत बड़ा आर्थिक सहयोगी के रूप में एक बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रहा है हमारा यूएस के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पक्षों को यानी कहीं बना के कहीं ना कहीं सर वो है, तभी इसके दबाव में कहीं ना कहीं हम बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। जी सर। अभी जो यूरोपीय यूनियन के साथ जो FTA हुआ है तो उससे भारत को बहुत लाभ होने वाला जी है, सर। हानि क्या होने वाला है? सर हानि ये हो रहा है, ये हो सकता है कि सर यहाँ की जो लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट हो सकती है, और दूसरी यहाँ की जो वाइन और अल्कोहल इंडस्ट्री है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। और बिहार को क्या लाभ होने वाला है? बिहार को क्या लाभ होने वाला है? कहने का मतलब शराब तो बिहार में नहीं बिकेगा, यूरोपियन शराब, जी सर। चाहे टैरिफ 10% घटा दे या 0% कर दे, जी सर। बिहार को क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा बिहार के? बिहार के लिए सर बिहार चूंकि एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, तो सर जो भी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स होंगे तो उसमें सब बिहार काफ़ी मदद कर सकता है सर। अभी आप कह रहे थे कि इंडिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में थोड़ा कामयाब हो रहे हैं। जी सर। इसका मतलब है कि बायपोलर वर्ल्ड में बनाने में इंडिया एक बैरियर का काम कर रहा है। सर हालांकि बाइपोलर वर्ल्ड सबसे स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर कंसिडर किया जाता है हेड लेवल के द्वारा, लेकिन देखा जाए तो मल्टीपोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी देश अपने आप को एक ग्लोबल। इंडिया तो कामयाब हो रहा है ना जी सर। क्योंकि पूरी दुनिया देखे जब से वर्ल्ड वार समाप्त हुई वर्ल्ड बाइपोलर ही रहा। जी सर। अब भी कहा जा रहा है कि चलो रशिया के जगह पे मतलब सोवियत यूनियन के जगह पे अब जो है बाइपोलर के चाइना यहाँ पे काउंटर कर रहा है। जी सर। और फिर इंडिया दोनों के बीच में एक अपना टांग अड़ा के खड़ा है। सर टांग अड़ा के खड़ा होने वाली बात नहीं है सर, क्योंकि सर अपना अपना सर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में काम करता है सर, नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। तो चूंकि चाइना एक ग्लोबल पावर के रूप में आ रहा है, तो इंडिया को भी अपना एक ग्लोबल पावर के कॉन्टेक्स्ट में आना काफी हेल्पफुल होगा इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए सर। चलिए मेरा लास्ट सवाल है आपसे। पोस्ट प्रेफरेंस आपने STC बताया। जी सर। प्रोबेशन पीरियड में कई जगह पे आप काम कर सकते हैं, जी सर। CO भी बन सकते हैं, कई और भी काम कर सकते हैं। होली का त्यौहार आने वाला है। जी सर। और जिस प्रकार से समाज में एक मतलब का पेशेंस कम हो रहा है, जी सर। और रिलीजन के प्रति इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है तेजी से, जी सर। और रूमर ये है कि दो कम्युनिटी के बीच में बड़ा क्लैश है और हो सकता है कि दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। सर रूमर है। रूमर है। जी सर। और तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये रूमर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल भी हो रही है। जी सर। और आप एज ए CO
होली का त्यौहार सही अच्छे तरीके से बीत जाए, इसके लिए क्या कार्य करोगे? सर पहले तो सर सब सारे स्टेक होल्डर्स को ज्ञापन देना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी अफवाहें दौड़ रही हैं, चल रही है, और जिसके कारण एक हम प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोगों को सही से बर्ताव करने के लिए बोल सकते हैं। साथ में जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से ढंग से बनाने के लिए करने के लिए पुलिस विभाग की मदद ले सकते हैं, पेट्रोलिंग को बढ़ा सकते हैं, और कुछ भी जो भी ऐसे अराजक तत्व वाले जो भी लोग अगर इस तरह के कुछ करने की कोशिश करें, तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए बोला जा सके। साथ में उसके साथ साथ हम सोशल मीडिया पे भी कैंपेन वगैरह जारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम जो भी होली का त्यौहार जब आने वाला होता है तो मार्केट्स वगैरह पे भी अपना लोगों को बता सकते हैं, जो भी वहाँ पे बाजारों में जो भी लोग होंगे उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं सर। ओके सर, Thank you, Mr. Abdul. Thank you. You can go now. Sure. Thank you. थैंक यू सर।